वीडियो में आप उधर ही रहते हो. Okay, last lecture में see what we discussed. Let's take it from there. हाँ, last lecture में discussed कि there is something called photoelectric effect. Okay. When I say photoelectric effect, you should think of these 5 observations. ठीक है ना? Observation क्या है कि the moment light will fall on the surface, electrons will be emitted. Okay, and electrons will be emitted only when the incident frequency of light is more than the certain minimum frequency, which is threshold frequency, right? Okay, and this threshold frequency is not same for every metal. It is different for different metals. If I increase the frequency, kinetic energy used to increase, and we discussed last time कि how do I know kinetic energy has increased? By looking at the value of stopping potential. What is stopping potential? It's the reverse voltage or negative voltage required to stop the photocurrent, or you can say balance the kinetic energy. Remember, फिर अगर intensity बढ़ा है मतलब if I have multiple sources, okay, then the current increases. At that moment kinetic energy remains constant, or you can say stopping potential is constant. 5 observations is very very important, guys. Okay, this is photoelectric effect, and we realized कि photoelectric effect if I have to explain using theory at that moment, okay, at that moment you should imagine that light is wave, and we used to have wave theory of light at that moment. ठीक है, wave theory of light को use करके explain करना है, ठीक, so it becomes very difficult. Why? Because wave theory is delocalized behavior. मतलब ऐसे मैंने बताया तुमको एग्जांपल दिया था कि इट्स लाइक क्या होता है, फ्लावर, ये प्लांट्स को हम वाटर कर रहे हैं यूजिंग अ पाइप और समथिंग लाइक दैट. इट विल टेक सम टाइम फॉर एवरीवन टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड. इट मेक सेंस? एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि sufficient time will be required for electrons to gain enough energy to get out of the atom, है ना? And then according to wave theory of light, frequency is just a color, so any frequency should be enough to give you photoelectric effect. Maybe the time can change depending on the intensity. Okay, and they said कि intensity is dependent on energy. मतलब intensity और energy proportional है, ठीक है, और intensity और energy proportional है तो वो kinetic energy को affect करना चाहिए जो नहीं हो रहा था. तो all the observations या all the concepts of wave theory of light completely fails to explain what is photoelectric effect. Getting it? Okay. And I took an example also where I showed you कि it takes approximately 8.8 hours if I consider wave theory of light and calculate how much time it takes for the electron to pop out. है ना? ये भी हमने किया था last time. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. Now what happens कि now the moment we understand कि the wave theory of light is not going to work, so we have to come up with something new. Okay. And वही टाइम पे 1905 1906 में आइंस्टाइन ने अपना theory of relativity दिया था. And theory of relativity is related to the explanation of photoelectric effect. You have to understand what. So we will not do entire theory of relativity. Okay, we'll take those points in the form which we understand and which is useful to us. अपने को जो काम का चीज है वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, काम का चीज है वो क्या है? पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स doesn't give you correct results for high speeds. मतलब अपन जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, वो हाई स्पीड पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. समझा? मतलब अगर हाई स्पीड मतलब ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास का. न्यूटोनियन मैकेनिक्स लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करता है, सडन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम करता है. ठीक है, बट हाई स्पीड पर अगर चल रहे हैं ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड. समझा गया? रिलेटिविटी में ये सब हम लोग पढ़ते हैं. फिर तो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्राइमरली डिजाइन टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रैवलिंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड्स. समझा? और उसमें क्या समझा हमने? ठीक है, कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एम वी वो एप्लीकेबल है, बट एम जो है इट इज नॉट कांस्टेंट. एम चेंजेस विद द स्पीड. तो जब तुम मूव कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एम, मूविंग मास. और जब तुम रेस्ट पे हो, ठीक है, उस टाइम जो तुम्हारा मास है वो रेस्ट मास बोलते हैं. एम नॉट बोला हुआ है. मतलब मास जो है हम ऐसा बिलीव करते हैं कि मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर जब तुम्हारा एनर्जी चेंज होता है तो मास भी चेंज होता है. वाइसा वर्सा. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके. तो दैट्स व्हाट वी सेड कि व्हेन यू आर एट रेस्ट, रेस्ट मास है, और जब मूव करो तो मूविंग मास है. एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेस्ट मास एंड मूविंग मास. दिस इज द रिलेशन. ठीक है, एम इज एक्चुअली गामा एम नॉट, where gamma is relativistic constant, उसका वैल्यू 1 upon root of 1 minus v square by c square. And we have seen this formula कि moving mass is rest mass upon root of 1 minus v square by c square. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था तुमको मैंने. ठीक है, कि ऐसा ये मूविंग मास है, जब तुम मोशन में हो तो ये तुम्हारा मास होगा, और जब तुम रेस्ट में हो तो ये तुम्हारा मास होगा. ठीक है, जब तुम चल रहे हो वेलोसिटी v से तो नया मास तुम्हारा m हो जाता है. जब वेलोसिटी v 0 है तो तुम्हारा मास क्या है? m नॉट. समझा? तो आइंस्टाइन सेज दैट कि व्हेन यू आर मूविंग, ठीक है, योर मास विल चेंज because energy profile is changing. समझ में आया क्या? And E equal to mc square फेमस फॉर्मूला है. ओके, तो रेस्ट मास एनर्जी लिखना है तो आई राइट m नॉट c स्क्वायर. ठीक है, और जब तुम मूव कर रहे हो तुम्हारी एनर्जी क्या होगी? इट विल बी mc स्क्वायर. समझ में आया क्या? तो E equal to mc स्क्वायर इज मूविंग एनर्जी, E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर इज योर रेस्ट मास एनर्जी. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, रेस्ट पे एनर्जी अलग होती है और मूव करने टाइम एनर्जी अलग होती है. रेस्ट के टाइम आई यूज रेस्ट मास एंड मूव करने टाइम आई यूज मूविंग मास. m लिखते हैं मतलब
चलता हुआ, जब वेलोसिटी v है तब कौन सा मास है, दैट इज m. इज मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, दिस आइंस्टाइन थ्योरी. तो mc स्क्वायर का फॉर्मूला फेमस ही है, वी नो दैट. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड. देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, देखो हमारे लिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, पोजीशन, ब्ला ब्ला, है ना. ठीक है, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर इन दैट सिचुएशन यू हैव दैट एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर अस? मूविंग एनर्जी ना. जब तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे मोशन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला है ना. इफ एक मास m के पास अगर v वेलोसिटी है तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द रेस्ट मास एनर्जी, राइट. अच्छा, अभी आइंस्टाइन का थ्योरी के हिसाब से मैं जाऊं, ठीक है, तो मेरे समझ लो मूविंग, जब मैं मूव हो रहा हूं तो मेरे पास 12 जूल्स है फॉर एग्जांपल, और जब मैं रेस्ट में हूं तो मेरे पास 10 जूल है. तो मेरा मूव होने के बाद कितनी एनर्जी मिली मुझे? 2 joules ना. मतलब if I'm moving I have 12 joules of energy. If I'm at rest then I have 10 joules of energy. That means because of the motion how much energy I gain? 2. So that is my kinetic energy. समझा? So according to Einstein kinetic energy of particle is E minus E naught. अगर थियरी पे जाए जैसा वो बता रहा है, ठीक है, उसकी थियरी के हिसाब से अब आपने जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो क्या होगा? मूविंग एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी. डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, अब देखो अभी ये सबट्रैक्ट करने के बाद मेरे को हाफ mv स्क्वायर मिलना चाहिए. समझा? क्योंकि मैंने अब तक तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है. अगर आइंस्टाइन की थ्योरी करेक्ट है, जो वो बोल रहा है वो सही है अगर, ठीक है, तो इसको सबट्रैक्ट करने के बाद मेरे को हाफ mv स्क्वायर मिलना चाहिए. डू यू एग्री और नॉट? समझ में आया ना? ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं. तो दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. अच्छा, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल बिफोर आई गो फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी थिंग. फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है. तो हमने अब तक जो पढ़ा है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज, वो एप्लीकेबल है. बस मोमेंटम का जो फॉर्मूला लोगे वो mv होना चाहिए या गामा m नॉट v होना चाहिए. सर रेस्ट मास नहीं लेंगे, हम मूविंग मास लेते हैं वहां पर. समझ में आया क्या? तो बोथ द फॉर्मूलास mv एंड dp by dt का फॉर्मूला आर एप्लीकेबल, बट यू शुड मेक श्योर दैट m का डेफिनेशन हैज चेंज्ड अ बिट. समझ में आया क्या? Any questions, anyone? Okay, let's go for the kinetic energy thing. So if I subtract moving energy and rest mass energy, मुझे क्या मिलना चाहिए? kinetic energy of the particle. समझा? अब देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पर ये mc स्क्वायर है, ये m नॉट c स्क्वायर है. ओके, फिर हमने क्या किया, देखो m नॉट c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. ठीक है, अब ये क्या, देखो यहाँ पर दिस टर्म, लुक एट दिस टर्म, ये टर्म देखो, ये टर्म क्या है? दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. डिनोमिनेटर ऐसे है ना, 1 अपॉन, it is 1 upon root of, sorry, what I'll do is 1 minus v square by c square raised to half कर सकते हैं, और ये ऊपर गया तो पावर विल बी नेगेटिव. देख मैंने वही लिखा है यहाँ पर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो आई हैव जस्ट चेंज द पावर टू नेगेटिव. समझ में आया कैसे क्या ये? ओके, अब तो आसान है. देखो अब क्या करना है, यू नो दैट कि जनरली जो पार्टिकल जो चलता है, जो नॉर्मल लाइफ में अपन जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ना स्पीड ऑफ लाइट में चलता होता है. ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ का वेलोसिटी इज वेरी लेस. ठीक है, 100 मीटर्स पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, वो भी बहुत ज्यादा है एक्चुअली, बट ठीक है चलो, 100 मीटर पर सेकंड भी स्पीड ऑफ लाइट के सामने तो बहुत ही कम है. वी कैन से इन जनरल v इज मच लेस देन c. ठीक है, तो देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल. ये बहुत छोटा वैल्यू है और ये बहुत बड़ा वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो आई कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. यू रिमेंबर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या था? इफ यू हैव 1 प्लस और माइनस a रेज टू n, ऐसा फॉर्मेट दिया है, एंड इफ a is much less than n, sorry, much less than 1, then we can say what? We can take the power in multiplication. थोड़ा याद है क्या? याद है कि बहुत भूल गए सब लोग. ठीक है, इफ दिस वैल्यू 1 प्लस रेज टू n ऐसा कुछ है, अगर स्क्वायर वायर जो भी हो, अगर ये वैल्यू बहुत छोटा है 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं, n को अंदर ले सकते हैं, राइट. दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वी डिड इन बेसिक मैथ्स. ठीक है, अब वही कर रहा हूँ मैं. मेरे को पता है ये वैल्यू बहुत छोटा है 1 से कंपेयर किया, तो पावर को अंदर ले सकते हैं. अंदर ले लिया तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज हाफ, करेक्ट. ओके, एंड देन व्हाट यू डू, देन यू जस्ट ये mc स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालें. देखो, ठीक है, देखो यहाँ से व्हाट आई डू इज, लुक एट दिस, दिस mc स्क्वायर m नॉट c स्क्वायर को बाहर निकालो. वी हैव 1 प्लस हाफ v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, 1 and 1 will get cancelled, c square will get cancelled, I get half m naught p square. तो आया, जैसा बोला था वैसा आया. मतलब अपन ने जो पढ़ा है वो सही है, और आइंस्टाइन का थ्योरी भी उसको कंफर्म करता है, मतलब बराबर है, तो सब कुछ मैच कर रहा है मतलब. ठीक है, व्हाट आइंस्टाइन वाज सेइंग कि मूविंग मास और रेस्ट मास एनर्जी का जो उसके फॉर्मूलास है वो भी करेक्ट है, बिकॉज इट्स गिविंग द सेम रिजल्ट व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग. समझ में आएगा? तो क्लासिकल मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की थ्योरी मैच ही कर रही है मतलब. और इधर सर ये रेस्टिंग मास. हाँ,
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला अपन करते हैं हाफ mv², उसमें m क्या डालते हैं अपन, जो नॉर्मल रेस्ट मास वही है ना. इफ आई हैव 2 kg का बॉल थ्रोन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो यू विल पुट 2 kg. डू यू कैलकुलेट का मूविंग मास क्या होगा उसका, फिर डालते हैं. हम तो हाफ mv² कर देते हैं. वो हमने जो अब तक मास पढ़ा है वो रेस्ट मास ही पढ़ा है. तो अपना फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ रेस्ट मास v². ठीक है, और वही आना भी चाहिए था और आया. समझा, मैंने बोला ना पहले कि अगर आइंस्टाइन का थ्योरी राइट है कि मूविंग एनर्जी होता है, रेस्ट मास एनर्जी आता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, आया तो मतलब सही है. ठीक है, दिस इज मोर बेटर प्रूफ्स, दिस इज जस्ट अ प्रूफ दैट वी अंडरस्टैंड, इसलिए कराया बस. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, दिस प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट कि पार्टिकल्स माइट हैव टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन बिकॉज ऑफ द मोशन एंड अदर बिकॉज ऑफ रेस्ट. ये तुमको समझना बस. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन जनरल जो आइंस्टाइन थियरी है, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सर्टन सम्स कैन बी सॉल्व ओनली बाय दिस फॉर्मूला, स्पेशली अगर इफ यू आर सॉल्विंग एच सी वर्मा, डी सी पांडे और दोस काइंड ऑफ बुक्स. इन जनरल जो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, इट इज वेक्टर सम ऑफ 2 एनर्जीज. ओके, 2 एनर्जी का सम है. एक है रेस्ट एनर्जी, जिसको हम m0c² लिखते हैं. ठीक है, रेस्ट के अपना बिकॉज वी आर एट रेस्ट वी आर सम एनर्जी, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं इसको हम. ठीक है, रेस्ट एनर्जी. और दूसरा बिकॉज ऑफ आवर मोशन, तो मोशन का एनर्जी ये रहा, ये है रेस्ट एनर्जी. मोशन का जो एनर्जी है उसको लिखते हैं pc. ओके, pc². तो ये दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, E1 बोल सकते हैं उसको. दिस इज E2, E1 E2 का रिजल्टेंट इज दिस E. तो इन जनरल यू कैन से फॉर एनी पार्टिकल देयर आर 2 कंपोनेंट्स, रेस्ट मास एनर्जी एंड मूविंग एनर्जी, उसका रिजल्टेंट इज द टोटल एनर्जी. समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर्मूला ये प्रेडिक्ट करता है कि नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा है कि जो रेस्ट वाला पार्टिकल वो चल रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट और दे कैन बी मूविंग, है ना. ठीक है, दैट वी हैव लर्नड. तो ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल ओनली हैव रेस्ट एनर्जी. इफ इट इज मूविंग तो इट हैज रेस्ट एनर्जी प्लस मूविंग एनर्जी, राइट. समझ में आया ना. ठीक है, पर आइंस्टाइन ने पता क्या प्रेडिक्ट किया? बोला तुम्हारे पास ये हो सकता है, सिर्फ ये दोनों हो सकते हैं. पहला पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है तुम्हारे पास, दूसरा तरीका ये दोनों है तुम्हारे पास, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ ये है. समझा, मतलब इट इज पॉसिबल टू हैव पार्टिकल्स व्हिच आर ऑलवेज मूविंग, दे आर नेवर एट रेस्ट. समझा क्या? उसने क्या प्रेडिक्ट किया कि ऐसा पार्टिकल ही पॉसिबल है जो कभी रुकते ही नहीं है, सिर्फ चलते ही रहते हैं. मतलब ठीक है, चलता हुआ ही डिफाइन कर सकते हैं, उसको रुका ही नहीं सकते. एग्जांपल लाइट, कभी लाइट को रुकते हुए देखा है क्या? और रुक गया लाइट, अभी देखते हैं यार ऐसा हुआ है, बल्ब चालू किया लाइट रुका हुआ है, आगे जा ही नहीं रहा है लाइट, ऐसा होता है क्या? तो उसमें लाइट शायद ऐसा कुछ से बना हुआ है. सोचा कि ऐसा पार्टिकल ही पॉसिबल है जो हमेशा से मोशन में रहते हैं. ठीक है, और उस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया फोटॉन्स. सिर्फ फोटोन ही ऐसा एक पार्टिकल नहीं है जो रेस्ट, मतलब फोटोन ही सेड कि देयर कैन बी पार्टिकल्स व्हिच आर नेवर डिफाइंड एट रेस्ट. ठीक है, दे आर ऑलवेज मूविंग एंड ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं. वन ऑफ द पार्टिकल ही सेड इज कॉल्ड एज फोटोन. ओके, फोटोन बोला कि फोटोन वो पार्टिकल इससे लाइट बना हुआ है. बिकॉज हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, लाइट को समझने की कोशिश करते थे, बिकॉज लाइट का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था. वेव थ्योरी लाइट ने लाइट का बिहेवियर ठीक से समझा नहीं, है ना. नहीं तो समझा होता तो फोटो इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाता. ठीक है, तो बोला लाइट बना किससे यार. ठीक है, तो उसने जो अपना बनाया रिलेटिविटी, उसमें बोला कि लाइट इस पार्टिकल से बना है जो हमेशा मूव होते रहता है. नो, दे कैन बी एट रेस्ट ना. या एक आइस्टार्ट कोड है. ठीक है, समझा, लाइट कैन नॉट बी नेवर बी एट रेस्ट. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो उसने बोला लाइट जिस पार्टिकल से बना हुआ है और जो हमेशा मोशन में रहता है उसका नाम दे दिया फोटोन. देयर आर मोर पार्टिकल्स लाइक दिस व्हिच आर ऑलवेज मूविंग. जैसे अभी एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, वो सब पार्टिकल्स भी होते हैं, बाद में बताऊंगा उसको. ठीक है, ओके. तो ये एक वन ऑफ द पार्टिकल्स है जो रिलेटिविटी का रिजल्ट है. समझा गया? तो उसने बोला लाइट फोटोन नाम दे दिया उसने. बोला फोटोन इज नॉट पार्टिकल बाय द वे, इट इज पार्टिकल लाइक, इट हैज प्रॉपर्टीज व्हिच आर सिमिलर टू पार्टिकल. पार्टिकल ही है ऐसा नहीं है. ठीक है, पार्टिकल जैसा है. ठीक है, अगर पार्टिकल ही होता तो रेस्ट पे भी डिफाइंड होता. ठीक है, हमारे लिए पार्टिकल मतलब कैसे, ये पार्टिकल हो गया, रेस्ट पे भी डिफाइंड है भाई, रुका भी हो सकता है ये. ठीक है, लाइट का पार्टिकल ऐसा नहीं है, हमेशा मोशन में रहता है. चमका, तो व्हाट इज फोटोन? इट इज अ पार्टिकल व्हिच कैन नेवर बी डिफाइंड एट रेस्ट एंड लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन. कैन वी हैव मोर पार्टिकल लाइक दिस? आंसर इज यस. समझा, बट हमने अभी लाइट के लिए कराया. ठीक है, और फिर बोला कि क्योंकि जो फोटोन है वो तो हमेशा मोशन में रहता है, तो उसके पास ये कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी कभी नहीं होगी, उसके पास ये वाला ही रहेगा. तो उसका ई क्या होगा? E² विल बी, ये तो हट गया. ठीक है, तो E विल बी PC, where P is momentum and C is speed of light. Is it making sense? थोड़ा समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी बोला लाइट फोटोन से बना हुआ है, तो अभी फोटोन्स का ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास था नहीं, बट आइंस्टाइन गेव प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स आल्सो. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी शुड नो, इंपॉर्टेंट वंस एटलीस्ट. ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटोन बोल रहे हैं. दे आर पार्टिकल लाइक, दे आर नॉट एग्जैक्टली पार्टिकल, रिमेंबर दैट. ओके,
दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो तो ठीक है, ओके। जो फोटॉन्स है उनकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी होती है, ओके। मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है p इज h अपॉन लैम्डा, ओके। ये दैट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, ठीक है, ओके। अभी p मिल गया तो e मिल जाएगा, e वाज pc, ठीक है। तो वी कैन से हाँ p का वैल्यू h अपॉन लैम्डा है, तो e होता है hc बाय लैम्डा। यू मस्ट हैव सीन दिस फॉर्मूला, है ना, देखा है ना तुमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो hc बाय लैम्डा फॉर्मूला यहाँ से आया भाई, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, लाइट के पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। वी नो दैट वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब लाइट की वेलोसिटी को c बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को नू बोल रहे हैं, और लैम्डा को लैम्डा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो वी नो दैट c इज इक्वल टू नू लैम्डा, और बोल सकते हैं कि c अपॉन लैम्डा शुड बी नू। तो ये भी एक फॉर्मूला है, h नू लिखो या hc बाय लैम्डा लिखो, तुम्हारे ऊपर है। समझा, फ्रीक्वेंसी पता है तो h नू लिख लो, ठीक है, और वेवलेंथ पता है तो hc बाय लैम्डा। एनी क्वेश्चंस? मोमेंटम बता तो पीसी भी कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, ये तो और भी प्रॉपर्टीज है कि जब लाइट ट्रैवल करते हैं, फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी जैसी ही है, ठीक है। फिर ये वाला प्रॉपर्टी हमारे काम का है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फोटॉन्स कैन इंटरैक्ट विथ मटेरियल पार्टिकल्स। असली पार्टिकल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, ठीक है, उनके साथ वो इंटरैक्ट कर सकता है। समझ में आया क्या? जब भी ये जैसे एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन टकरा गया, तो टकराना पॉसिबल है, इट कैन इंटरैक्ट विद दिस काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फोटोन से इंटरैक्ट करेगा ऐसा नहीं है, मतलब इट कैन आल्सो इंटरैक्ट विद द एक्चुअल पार्टिकल्स दैट वी नो टू अस, व्हिच आर नोन टू अस। तो इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर सकता है, बट क्या समझना है इसमें, ऐसे इंटरैक्शंस में, इन सच इंटरैक्शंस द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। और जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, समझा ना। ऐसा नहीं कि एनर्जी लॉस हो गया, मोमेंटम लॉस हो गया, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और सुनो, ठीक है, हाउएवर इसमें एक चीज कंसिडर होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब कैसे, ऐसे बोल रहे हो, देखो समझो, फॉर एग्जांपल एक प्लेट है और उसमें 4 फोटॉन्स गिरे, 4 फोटॉन्स आर इंसिडेंट, एंड लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड, ठीक है। 4 फोटॉन्स गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। भाई कितना फोटोन लग रहा है मुझे फला फला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। तो बोला उसने, क्या बोला कि क्वांटम एफिशिएंसी कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर 4 फोटॉन्स गिर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आई कैन से फॉर गारंटी दैट 8 गिरेगा तो 4 मिलेगा। ये बोल सकते हो हमेशा कि 4 गिरा 2 मिला, तो 8 गिरा तो 4 मिलेगा, 12 गिरा तो क्या बोलते 6 मिलेगा, ये बोल सकते हो, ठीक है। क्वांटम एफिशिएंसी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ में आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर नंबर ऑफ photons incident is always constant। तो x number of photons giving y number of electrons, this will be always constant। समझा? However ऐसा हो सकता है कि 4 फोटोन गिरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकला और साथ में 6 फोटोन निकल गया, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एक बार 6 फोटोन निकला, एक बार 2 ही फोटोन निकला, या एक बार 0 फोटोन निकला, कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब फोटॉन्स इंटरैक्ट करते हैं पार्टिकल के साथ, ठीक है, तो अगर x नंबर ऑफ फोटॉन्स y इलेक्ट्रॉन्स दे रहे, तो दैट रिलेशन विल बी मेंटेन्ड। हाउएवर इन द सच इंटरैक्शंस नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझा क्या? तो 4 फोटॉन्स से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 फोटॉन और भी निकल सकते हैं, 6 भी निकल सकते हैं, 0 भी निकल सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कंजर्व्ड, दैट यू शुड नो। उस पर अपने पास कोई कंट्रोल नहीं है। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चंस इन द प्रॉपर्टीज? देख लो एक बार, ठीक है, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज है इसके बेसिस पे अब हम ट्राई करेंगे कि वी एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आइंस्टाइन द पर्सन who invented theory of relativity, okay। From that relativity there is a result that we got that certain particles are possible which will not exist at rest, and he assumed that ऐसे ही किसी particle से light बना हुआ है, okay। He named the particle as photon, okay, and then he gave these properties, and the most important property for us right now is this कि ये तो E का फॉर्मूला काम का है हमारे। दूसरा क्या बोलते हैं कि ये पता है कि फोटॉन्स जो है वो असली पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मोमेंट पे वो अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि दैट विल बी कंजर्व्ड। समझा ना? अगर समझे, और बट हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो डोंट ट्राई टू जज दैट नंबर बिकॉज यू विल बी मेस्ड अप। मतलब वो वहां पे मत करो, वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये है कि क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं विद एक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो दैट नंबर इज मेंटेन्ड। समझा क्या? ठीक है, आ जाओ।
अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द सम्स दैट यू विल सी विल बी बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. तो ये बोर्ड पे जो भी लिखा है वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखो. आइंस्टाइन ने क्या बोला, देख ये तो मेटल प्लेट है. ओके, इसमें बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है जो आराम से घूम रहा है या जो भी कर रहा है. ठीक है, अब इसको इस प्लेट से बाहर निकलना है तो कुछ तो मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगा. ऐसा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द मेटल सरफेस, राइट. इवन इफ इट इज कंडक्टर, वो सरफेस को छोड़कर तो नहीं जा सकता. ठीक है, ओके. तो बोला कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड, उसको उसने नाम दे दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको भी कॉल एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड. सुना है क्या? ओके, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को 2 ईवी चाहिए तो 2 ईवी बिकम्स इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी. उससे कम एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. ठीक है, फिर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उसका एनर्जी तो आपको पता है, इट इज hc by लैम्डा और h न्यू. तो इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट एनर्जी. इंसिडेंट एनर्जी, ओके. तो इंसिडेंट एनर्जी E फॉल्स, फाई नॉट इज यूज्ड. ओके, तो E को हम दो तरीके से यूज करते हैं. एक तो थोड़ा पार्ट यूज करेंगे हम लोग बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. सेकेंड पार्ट जो बच गया, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड फॉर काइनेटिक एनर्जी. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, देख कि जैसे यहाँ पर 10 ईवी का एनर्जी से हम फेंका हमने, तो इलेक्ट्रॉन का समझ लो क्या बोलते हैं उसका 2 ईवी यूज कर लिया उसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. तो जो बचा हुआ एनर्जी है 8 ईवी, दैट बिकम्स अ काइनेटिक एनर्जी. समझ में आएगा? ओके, तो एनर्जी इंसिडेंट इज यूज्ड इन 2 ways. फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी. सेकंड पार्ट इज यूज्ड फॉर मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आएगा? अच्छा, अभी थोड़ा फॉर्मुलास देख लेते हैं. ई का फॉर्मुला बताया तुमको, इट इज hc by लैम्डा और h न्यू. ओके, फाई नॉट भी एनर्जी ही है तो वही फॉर्मुला चिपका देते हैं हम उसको. तो इट इज hc by लैम्डा नॉट और h न्यू नॉट. दिस इज इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ. ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. समझा? ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला लास्ट टाइम हमने किया था, इट वाज E into Vs where Vs was stopping potential. दैट इज फॉर्मुला नंबर 1. एंड सेकंड फॉर्मुला आवर स्टैंडर्ड फॉर्मुला हाफ mv स्क्वायर. ध्यान का रखना है कि m किसका आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है. समझ में आएगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो 9.1 10 to -31. समझा? v इज वेलोसिटी हियर, दिस इज स्मॉल v वेलोसिटी, दिस इज कैपिटल V स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब ये वोल्ट में रहेगा. समझ में आएगा? मतलब 10 वोल्ट 20 वोल्ट वोल्टेज में रहेगा. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एनी क्वेश्चंस? ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूला में देखो मैंने क्या लिखा, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई नहीं लिखा, के ई मैक्स लिखा. ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो बताता हूं, सुनो. समझ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा और मेरे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 2 चाहिए बस उसमें से बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसका 8 होना चाहिए. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन. इट इज क्वाइट पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इनसाइड द मटेरियल. ओके, अब वो जब निकला तो जैसे उसको 10 मिला, 2 तो उसने यूज कर लिया, 8 उसके पास था. बट 8 लेके वो बाहर निकलने की जब कोशिश करेगा तो बीच में टकराएगा ना यहाँ वहां. ठीक है, थोड़ा एनर्जी वहां पे वेस्ट हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है जब निकला था, जैसे निकला वैसे 8 था, बट बाहर निकलते हुए शायद 6 ही बचाओ या 4 ही बचाओ. ठीक है, या शायद बाहर निकलते निकलते सारा एनर्जी खत्म हो गया और 0 ईवी भी पॉसिबल है. क्वाइट पॉसिबल, राइट. ठीक है, जरूरी तो ना मतलब 8 ईवी मिला था तो वो लेके बाहर ही निकलेगा. क्या पता अंदर ही कोलिजन करते करते सारा एनर्जी खत्म कर दिया और सरफेस पे आते आते शायद 0 ईवी बचा. ऐसा हो सकता है, राइट. डू यू एग्री और नॉट? तो दैट्स व्हाई वी से कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 8, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. समझा कि बाउंसर? ठीक है, इफ यू प्रोवाइड 10, इफ 2 हैज टू बी यूज्ड फॉर क्या बोलते हैं और ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, तो 8 सबके पास रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. यू हैव रेंज कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम 0 to 8. समझा ना? ठीक है, और ऐसे लिखते लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E minus phi naught. दैट इज दिस. एनी क्वेश्चंस एनीवन? क्लियर द कॉन्सेप्ट? यस. Is an electron one of those like things that particles that don't aren't rest like proton? No, the electron can be stable at rest also. So 9.1 to 10 to 31 Is rest mass. Yes. See, whatever mass that we have learned so far is always a rest mass. Moving mass has to be calculated. It will be gamma into m naught. Yeah, m naught upon root of 1 minus v square by c square. So you must know the v का value to get the moving mass का value. समझ में आया ना? मतलब तो whatever mass we know is always the rest mass. So whether it's क्या बोलते हैं mass of proton or mass of electron is always the rest mass. Getting it? So in the total energy one, Hmm. why is there no potential energy? See,
यहाँ पे व्हाट वी बिलीव कि जैसी एनर्जी मिला उसको, ठीक है, इट्स लाइक क्या होता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन है, ठीक है, आके इसको हिट किया तो उसने अपना पूरा एनर्जी इसको दे दिया, समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा वो, एक तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इट हैज नो अटैचमेंट टू द एटम्स, राइट, समझा, तो निकल लिया बाहर और मोशन ही करेगा, और क्या कर सकता है वो, समझा क्या। देखो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पेन, ठीक है, दिस पेन राइट नाउ हैज पोटेंशियल एनर्जी, राइट, द मोमेंट आई लीव इट इट हैज पोटेंशियल बिकॉज इट हैज अटैचमेंट टू ग्रेविटेशन। पोटेंशियल किसके वजह से आ रहा है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसके वजह से, ठीक है। अगर ये पेन इस अर्थ के ग्रेविटी से बाहर कहीं है तो विल इट हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नो, समझा क्या। इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट प्लेट इटसेल्फ तो व्हाई विल योर इलेक्ट्रॉन हैव पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बोला कि बाकी अगर एक बार तुम प्लेट से निकल गए, ठीक है, तो पूरा एनर्जी तुम कहाँ यूज करो, मोशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी होगा। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसलिए देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर, ओके। और इवन इफ इट इज देयर, ठीक है, यू कैन अज्यूम दैट इट इज सो लेस दैट इट इज इनसिग्निफिकेंट। समझ में आया क्या? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। ये फॉर्मूला सबको समझ में आएगा बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हमको जो सम करना होगा उसमें ये फॉर्मूला ही काम आएगा। और जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो 2 पॉइंट्स मैंने और लिखा है जो तुमको हेल्प करेगा एक्चुअली, ठीक है। एक देखो ये वाला फॉर्मूला है कि हम लोग ना यहाँ पे ईवी में कैलकुलेट करते हैं, ओके, बिकॉज ना एच सी बाई लैम्डा यूज करेंगे तो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू डालो, फिर सी का वैल्यू डालो, फिर लैम्डा डालो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इट इज इफ यू वांट एनर्जी इन ईवी मोस्टली विल हैव वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम में दिया होगा या तो नैनोमीटर में दिया होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एनर्जी इन ईवी इज 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ओके। सो फॉर्मूला 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, यहाँ पे यू पुट 5000 कैंसिल करो तो 12.4 अपॉन 5 दैट इज इजी कैलकुलेशन। Instead of calculating 6.634 10 to minus 34 3 to the power 8 and then all those things, ये ज़रा easy calculation बनता है। तो ये कर लो, नैनोमीटर में जाए तो 1 0 कम हो जाएगा, समझा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 तुमको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 फॉर योर कैलकुलेशन यू शुड नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इन ईवी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्टेज। मतलब ये है कि सपोज आई टेल यू दैट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा 5 ईवी है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्टेज है प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ना, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट काइनेटिक एनर्जी इज 5 ईवी, सीधा लिख सकते हो मतलब। या उल्टा किसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी 2 ईवी है, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट्स। तो न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, समझा। तो ये 2 चीज तुम्हारे बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी ईवी में पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हो, वाइसा वर्सा, ठीक है, ओके। मोस्टली ना स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया होता है ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो डायरेक्टली ना काइनेटिक एनर्जी ईवी मिल जाता है। फिर क्या है, फिर एनर्जी इन ईवी निकालने का फॉर्मूला पता ही है, तो फाइंड आउट निकालना पड़ सकता है या वाइसा वर्सा, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशंस यहाँ पे ईवी में ज़्यादा अच्छा पड़ता है, समझ में आया क्या, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला सब समझ में आ रहा है, ओके, कि भाई हाँ कि फोटोन के पास एनर्जी ई है और वो क्या बोलते हैं जैसे ही गिरेगा इलेक्ट्रॉन के पास तो उस थोड़ा एनर्जी वो यूज कर ले, बाकी वो काइनेटिक एनर्जी यूज कर ले। सी दिस इज क्वाइट अ easy explanation that we have understood and this was थोड़ा common sense also कि मेरे को एनर्जी मिल रहा है तो थोड़ा यूज करेगा, बाउंड ब्रेक करना, बाकी के इमोशन यूज करेगा। दिस डज नॉट एक्सप्लेन मी द एग्जैक्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। मैंने क्या बोला कि अगर तुम 5 ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हो तभी तुम्हारा सही राइट है, वो तो वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट, समझ में आ गया। ये तो ठीक है, मतलब तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आइंस्टाइन ने बोला था पहले, ठीक है, क्या वो मेरे फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है कि नहीं। बिफोर आई गो देयर, ठीक है, वी रिमेंबर कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज डीलोकलाइज्ड बिहेवियर। हमने बताया था कि मतलब कि पानी जब डाल रहे हैं तो सबको 100 ml मिलने को टाइम लग जाएगा। अगर द रिक्वायरमेंट इज 100 ml, ठीक है, तो एवरीवन को टू गेट 100 ml इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, समझा क्या। फोटोन थियरी जो है, ठीक है, वो एक्चुअली इसका ऑपोजिट है, जैसे ड्रिप इरिगेशन पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, समझ लो। मतलब मेरे को 100 ml देना है इस प्लांट को, मैं क्या करूंगा बताया क्या कि 100 ml का एक बॉल बनाया, फेंक दिया उसके ऊपर, ठीक है, समझा। जैसे आई नो दैट कि क्या बोलते हैं 100 ml चाहिए इनको, ठीक है, तो मैंने क्या किया है वाटर बॉक्स बना के रख दिया 100 ml का और वो फेंक रहा हूँ उसके ऊपर। तो चांसेस क्या है, मतलब कि फटाक से इसको मिल जाए, बहुत हाई चांस है, ठीक है। इसमें 5 घंटा रुकोगे तब जाके सबको 100 ml मिलने वाला है। इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि जिस प्लांट के ऊपर वो बॉल गिरा फट से उसको 100 ml मिल जाएगा, समझ में आ रहेगा। ये है फोटोन थियरी और ये है वेव थियरी, समझा गया। फोटोन थियरी क्या बिलीव करता है, कैसे एनर्जी के बॉल्स है हमारे पास फोटोन के, ठीक है, और वो फायर हो रहे हैं। जैसे किसी प्लांट के ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन पे गिरा, फट से उसको एनर्जी मिल गई, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमको लगता था कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं,
समझ में आ रहा है? जब वेव थ्योरी का लगता है कि तूने इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब तूने एनर्जी बढ़ाया, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। सी व्हाट अपना पार्टिकल थ्योरी बिलीव्स दैट ई इज व्हाट टोटल एनर्जी, ओके। एक फोटोन के पास h nu एनर्जी है, तो n फोटोन्स के पास कितना होगा, nh nu, समझा? तो आई कैन राइट इंटेंसिटी एज E अपॉन AT को लिख सकते हैं NH nu अपॉन AT, समझा? और इसमें से H nu और A को हटाओ तो N by T इज इंपॉर्टेंट। हम ये बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को। जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मतलब इफ यू यूज टू सोर्सेस, देयर इज अ प्लेट एंड यू यूज टू सोर्सेस, तो मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर फोटॉन्स देख रहे हैं अभी, तो यू हैव मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर जाएगा, मतलब ज्यादा बॉल्स हिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, समझा? तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स मींस क्या बोलते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, दैट मींस मोर करंट, बिकॉज चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, चमका की बाउंसर। तो इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है, ठीक है। तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ता है, बिकॉज जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो तुमने इंडिविजुअल बॉल्स को, जैसे ये एक बॉल 100 ml का है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो जब तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो तुमने नंबर ऑफ बॉल्स इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तुमने एक बॉल का पावर नहीं बढ़ाया है, समझा? अभी भी ये बॉल 100 ml का ही है, समझ में आया क्या? व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन यू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉल, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी बढ़ाना है, ठीक है, अगर मुझे एनर्जी बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, समझा? समझा कि नहीं? मतलब अगर ये 100 ml का बॉल था, इसको 200 करना है, ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को डबल करना पड़ेगा। अब 200 ml मिला तो 100 ये यूज कर लेगा, बाकी 100 एनर्जी में यूज कर सकता है, समझ में है ना, ठीक है। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि वेव पार्टिकल थियरी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इट एज्यूम्स दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो व्हेन यू इंक्रीज द एनर्जी, when you increase the frequency, you are going to increase energy, which will increase the kinetic energy, because ये तो कांस्टेंट है, समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले में अगर 20 ईवी दिया मैंने, तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया इसने, 2 तो यूज कर लेगा 20 में से, बचेगा तो 18। तो पहले जो 8 लेके चल रहा था अभी वो 18 लेके चलेगा, समझ में आया? दैट्स यू शुड एग्री, व्हेन यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एनर्जी विल इंक्रीज, हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। चमका की बाउंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो, आई एक्सप्लेन दिस टू, राइट? गो बैक टू योर ऑब्जर्वेशंस। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंक्रीजेस, देयरफॉर करंट इंक्रीजेस, ठीक है। इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी आई एम एक्चुअली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा फोटोन को, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, दैट्स द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इज मेकिंग सेंस, ठीक है। एंड बाकी तो पॉइंट्स बहुत आसान है। देख, अगर क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, अब मैंने क्या बोला कि फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन टकराने वाला है, तो देयर हैज टू बी अ कोलिजन, राइट? अब कोलिजन में ऐसा होता है क्या कि टकराएगा, फिर रुकेगा आराम से 5-10 मिनट तक, फिर अलग अलग होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर इंस्टेंटली, समझ में आ रहा है? इसलिए इट्स इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। नेक्स्ट, और ऑब्वियसली ये भी कॉमन सेंस है, इफ योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट इनफ, मतलब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ओके। इफ आई गिव यू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल इलेक्ट्रॉन लीव द बॉन्ड, तो विल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन? नो, समझ में आएगा? तो फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, E हैज टू बी मोर देन phi नॉट, और वी कैन से nu हैज टू बी मोर देन nu नॉट, समझा क्या? तो इसलिए बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डाल दे रहे हो तुम लोग, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा तो हमको उतनी भी एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम ब्रॉड ब्रेक कर पाए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो वो नहीं होगा अगर, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आया क्या? ठीक है। तो आई एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट आल्सो। फर्स्ट पॉइंट वाज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, तो दैट विल हैपन बिकॉज कोलिजन, ओके। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, योर एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इफ यू डोंट प्रोवाइड enough energy, तो obviously the photoelectric effect will not happen. So for PE to happen, energy should be more than threshold energy, or we can say frequency has to be more than threshold frequency. समझ में आया क्या? And it is common sense that every electron का electronic configuration अलग होता है, जब हर मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, तो जो बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी है phi नॉट, वो डिफरेंट होना चाहिए डिफरेंट के लिए। Is making sense? सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक I'll pause, you write these notes, ठीक है। If you have any questions, please ask me. Okay, we have to do some graphs. Okay, basically there are 3 graphs that are very important. One is current versus voltage graph. Okay,
दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ हॉलबैक एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट्स ओनली, जो स्टार्ट में हमने एक्सपेरिमेंट किया था उस पे ही मतलब बेस्ड है ये, ओके। एंड सेकंड वन इज आइंस्टाइन के इक्वेशन में मैंने जानबूझ से ग्राफ एंड में लिया सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन डिटेल। सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि इन द फर्स्ट ग्राफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ओके। और जो ग्राफ देखो कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है, मतलब व्हेन आई स्टार्ट द ग्राफ ऑफ नेचर इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ओके। अभी क्या है बताओ, सुनो। यू अंडरस्टूड ना कि देखो इफ यू गो बैक टू योर एक्सपेरिमेंट, सबसे फर्स्ट वाला दिस सेटअप में, इफ यू लुक एट दिस सेटअप केयरफुली यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो ही चीज देख सकते हैं, एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट, और तो कुछ मेजर करने वाला चीज है ही नहीं, है ना। वोल्ट मीटर है वोल्ट मेजर करने के लिए, एंड करंट है करंट मेजर करने के लिए। तो जो ग्राफ बनाया उन्होंने आई वर्सेस वी का ही बनाया है, ओके। और फिर और जब बनाया है तो देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये क्या बता रहा है पता है क्या, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे मैंने ग्रीन लाइट डाला हुआ है समझ लो ऑन दिस मेटल प्लेट, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्राफ गोज लाइक दिस, ओके। नाउ ये वाला जो पार्ट है यू सी यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव वोल्टेज, राइट, ये प्लस साइड और नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज, फॉर दिस नेगेटिव वोल्टेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, 0, isn't it, ठीक है। इफ यू रिमेंबर नेगेटिव वोल्टेज एट विच करंट इज 0 इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो याद है क्या, है ना। वो नेगेटिव वोल्टेज जिसपे कुछ भी करंट नहीं मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ में आएगा, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि धीरे धीरे करंट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, आई सैचुरेशन, ओके, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब देखो ये कैसे चेंज होता है, ओके, ये हमको पढ़ना है। दिस द फर्स्ट ग्राफ इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने क्या किया कि हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, ओके। लुक एट दिस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग 3 फ्रीक्वेंसीज, nu1, nu2, nu3, सच दैट कि nu3 इज मोर देन nu2 इज मोर देन nu1, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो क्या क्या मिल रहा है, देखो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो सबका सैचुरेशन करंट तो सेम है, करंट तो सबको सेम ही मिल रहा है, ठीक है। हाउएवर व्हेन आई चेंज द फ्रीक्वेंसी व्हाट आई सी, देयर इज अ चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे अगर -10 लग रहा था तो यहाँ पे -20 लग रहा है, यहाँ पे -30 लग रहा है। तो एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, समझा, विच मीन्स व्हाट इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी। तो वही लिखा हमने कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन कम्स फ्रॉम हियर, ठीक है। वो ग्राफ से समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, बट करंट सेम रह रहा है, समझा। इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट ग्राफ इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो नाउ हियर व्हाट इज I1 I2 I3 दे आर इंटेंसिटीज, ओके। मतलब एक सोर्स यूज किया, 2 सोर्स यूज किया, 3 सोर्स यूज किया। तो व्हेन आई यूज मल्टीपल सोर्सेस, व्हाट इज हैपनिंग कि सभी सोर्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट सबके लिए सैचुरेशन करंट चेंज हो गया। एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी व्हाट यू हैव सीन द करंट इंक्रीजेस, समझ में आएगा ग्राफ। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इट इज जस्ट अवर 4th and 5th ऑब्जर्वेशन। एनी क्वेश्चंस इन द ग्राफ फॉर्म, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, एंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू विल सी दिस इन काइंड ऑफ बुकलेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसे ग्राफ बना देंगे, ओके, और and then ऐसा कुछ, and they'll say this is A, this is B, and this is C. Frequencies A, B, C. Okay. What can I say? जैसे मैं देखता हूँ कि A, B, C है तो I can say that कि देखो A और B का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना। That means उसका क्या सेम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। Vs तो सेम है ही है ना, ग्राफ से Vs सेम है, ठीक है। इफ Vs इज सेम दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज सेम, एंड काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, समझा क्या। इसका मतलब A का फ्रीक्वेंसी और B का फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा बोल सकते हैं, समझ में आया क्या। आई विल द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, लुक एट दिस अगेन, A एंड B का क्या है, देखो A और B का सेम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, इसका मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, मतलब A का फ्रीक्वेंसी और B का फ्रीक्वेंसी सेम है, समझा। यहाँ पे इफ यू सी, ओके, तो C के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू A एंड B, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो हाई, दैट मींस
C का frequency should be more than A equal to B. That is what I can conclude. When I talk about frequency, ठीक है, तो C का frequency ज्यादा होना चाहिए बिकॉज उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है. समझ में आ गया? ठीक है, A और B का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसलिए उनकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. फिर फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू phi नॉट प्लस के ना. ठीक है, तो ये चेंज करो तो ये चेंज हो जाता है. समझा ना? ठीक है, ये तो कांस्टेंट है. ठीक है, इफ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो चेंज क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल. इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पक्का समझ में आया कि बोल रहा हूं? अगेन आई रिपीट लास्ट टाइम, ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. समझ में आया? ठीक है, सी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू, इससे ज्यादा वैल्यू है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए. इसलिए आई कुड राइट सी इज ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ये पार्ट समझ में आया ना? अच्छा, और समझो. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, यहां देखो, ये करंट ज्यादा है और ये करंट कम है. ठीक है, करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे. ठीक है, इन दोनों का करंट सेम है, दैट मींस इनकी इंटेंसिटी सेम है. समझा क्या? ठीक है, और इनकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो मोर देन. देखा ना, आस्क क्वेश्चन लाइक दिस कि कौन से सोर्स के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन से सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो ऐसा हम कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम. थोड़ा समझ में आएगा कैसे किया हमने? एनी क्वेश्चंस एनीवन? श्योर? ठीक है, यू गेट द कॉन्सेप्ट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम. दैट मींस क्या बोलते हैं? इट विल बी सेम व्हेन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज सेम एंड इंटेंसिटी इज सेम, मींस क्या करंट विल बी सेम. समझा? दैट इज द कंक्लूजन. ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और इंटेंसिटी और करंट डिपेंडेंट होते हैं. यू गॉट इट? अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट, look at the next graph. Now this is based on Einstein's equation. This graph is having on the y-axis this इसको बोलते हैं कलेक्टर पोटेंशियल. कलेक्टर पोटेंशियल डिफरेंस या जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस. कलेक्टर पोटेंशियल मतलब जो कलेक्टर प्लेट है उसका वोल्टेज क्या है. ठीक है, ओके. एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है. कैसे बनाया देखो. वी नो दैट E इज इक्वल टू phi नॉट प्लस के मैक्स. ठीक है, या के इन जनरल. तो E को लिखा h न्यू. ओके, इसको लिखा h न्यू नॉट, इसको लिखा EV. दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस या कलेक्टर पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको. ठीक है, ओके. नाउ रीअरेंज द टर्म. इसको यहाँ पे लेकर आओ तो यू हैव h न्यू ना माइनस h न्यू नॉट और E को डिवाइड कर दो तो यू गेट दिस इक्वेशन. V इज इक्वल टू h अपॉन E न्यू माइनस h अपॉन E न्यू नॉट. अब इफ यू कंपेयर दिस इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे जो m का वैल्यू है वो h अपॉन e, दैट इज द स्लोप का वैल्यू. एंड यू सी स्लोप इज पॉजिटिव. ओके, एंड जो c है इट इज y इंटरसेप्ट है ना. ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज नेगेटिव एक्चुअली. h अपॉन e न्यू नॉट, इट इज एक्चुअली y इंटरसेप्ट. और y इंटरसेप्ट जो है अपना वो नेगेटिव है. समझा क्या? मतलब वो नीचे y एक्स को नीचे कट कर रहा है नेगेटिव पे, बट स्लोप पॉजिटिव इसलिए एंगल पॉजिटिव नहीं है, एक्यूट एंगल. समझा क्या? दिस इज द ग्राफ. देखो, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, विद अ पॉजिटिव स्लोप बट नेगेटिव इंटरसेप्ट. जहां पे वो x को कट कर रहा है दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जहां पे वो y को कट कर रहा है वो ये वैल्यू है. दिस इज एक्चुअली ऊपर. इफ यू सी दिस phi नॉट दिख रहा है तुमको. h न्यू नॉट मतलब क्या है? phi नॉट है. phi नॉट अपॉन e. phi नॉट अपॉन e करते हो तो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, phi नॉट h न्यू नॉट इज एक्चुअली राइट नाउ इन जूल्स. ठीक है, डिवाइड बाय e करो तो EV में जाता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज phi नॉट इन EV. तो y पे जहाँ पे इफ आई राइट y पे 10 लिखा है y पे, इसका मतलब 10 EV इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी. और समझो यहाँ पे लिखा है 2, तो वी कैन से 2 हर्ट्ज इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. समझ में आ गया? समझा? तो ऐसा नंबर्स दिया है तो समझना चाहिए वो नंबर क्या है. ठीक है, और एक बात समझो कि इफ यू लुक एट द स्लोप का वैल्यू, क्या वैल्यू है? h बाई e है ना. h क्या है? Planck's constant. E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. विल दिस वैल्यू एवर चेंज? इट इज कांस्टेंट. दोनों ही कांस्टेंट है यार. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसका मतलब स्लोप इज गोना बी कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मेटल यू यूज. समझा गया? ठीक है, बट यू रिमेंबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बना है. अगर अपने पास एक मेटल प्लेट है A और एक मेटल प्लेट है B, ठीक है, तो समझ जाओ कि उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट बट द स्लोप विल बी सेम. तो स्लोप विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम. समझा? स्लोप विल बी सेम. समझा? बिकॉज h अपॉन e है. समझा? और समझो एक्चुअली थोड़ा सा, when Einstein did this experiment, okay, तो he said कि slope is gonna be constant, the value is h upon e. उस टाइम पे हमारे पास e का वैल्यू नहीं था.
समझा ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट नोन टू अस, ठीक है, वी हैड द स्लोप का वैल्यू, ओके, बट वी डिड नॉट हैव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस अगर ये वैल्यू है और ये नहीं है, ठीक है, तो देखो स्लोप इंटू ई करने पे एच मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आइंस्टाइन को ये क्लेम करने के लिए कि जो उसका एच और प्लैंक का एच सेम है, ये क्लेम करने के लिए ये ई का वैल्यू चाहिए था हमको, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने जहां भी क्या बोलते हैं H2 लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं कि वो प्लैंक का कांस्टेंट से इंस्पायर्ड है, राइट, समझ में आ रहा है क्या। बट टू प्रूव दैट इट इज प्लैंक कांस्टेंट ओनली, आई नीडेड द वैल्यू ऑफ ई एंड व्हिच वाज नॉट नोन एट दैट टाइम, समझ में आया क्या, ठीक है। तो स्लोप जो है वो तो मिल गया ग्राफ से, बट एच की वैल्यू मतलब स्लोप इंटू ई करेंगे तब अपने को एच मिलना चाहिए, तो कंफर्म हुआ कि हाँ आइंस्टाइन के जो फॉर्मुलास में एच यूज हुआ है और प्लैंक का जो एच है वो मैच हो रहा है। तो वो नहीं था अपने पास, इसलिए बहुत टाइम तक वी हैड नोबेल प्राइज दिया नहीं था उनको, समझा क्या। जब ई का वैल्यू मिल गया, मिलिकन ने ऑयल एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज का ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ के निकाला, उसके बाद क्या बोलते कंफर्म हुआ कि प्लैंक्स क्वांटम यूज हो रहा है और क्वांटम थियरी का रिजल्ट और रिलेटिविटी रिजल्ट मैच कर रहा है। कंफर्म होने के बाद हमने उनको नोबेल प्राइज दिया, समझा। तो मिलिकन का भी रोल बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, बिकॉज वी डिड नॉट नो कि हमने लिखा तो है एच एच बट कंफर्मेशन नहीं था, अनलेस यू कंफर्म, तो कंफर्म ई के वैल्यू के बाद हुआ, समझा क्या। तो 1914 में आई थिंक ही वाज गिवन नोबेल प्राइज एंड 1905 1906 के आसपास द ही गेव दिस थियरी ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो काफी टाइम के बाद। आई गेट द पॉइंट, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राफ समझ में आया अपने को, ओके। तो ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे एटलीस्ट टिल नाउ व्हाट इज हैपनिंग वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमको समझ में आ गया है कि लाइट जो है, जो अब तक हम लोग वेव की तरह उसको बिहेव कर रहे थे, अब सोच रहे थे कि वो वेव है, एक्चुअली वो बिहेव करता है पार्टिकल जैसा, ठीक है। उसमें फोटॉन्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और फोटोन की तरह इमेजिन करेंगे तो ही पूरा एक्सप्लेन कर पाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझा। इफ आई assume light to be a wave, I cannot explain photoelectric effect, ठीक है। और if I assume light to be made up of photons, then I can explain it, right? So it is actually, we are saying कि light is behaving like particle in photoelectric effect. Do you agree or not? ऐसा लग रहा है ना, मतलब ठीक है। तो फिर अभी वो साइंटिफिक कम्युनिटी में ये होगा कि भाई वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उल्टा भी होता है क्या, ठीक है ना, मतलब अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक लाइट जो है वो पार्टिकल फोटोन जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या पार्टिकल्स भी वेव जैसा बिहेव कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली आंसर इज यस, ही सेज कि नेचर में सिमेट्री होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। एंड द रीजन ही गिव इज नेचर लव्स सिमेट्री, ओके। तो इसे मैटर, ठीक है, मैटर जो होता है वो उसके पास डुअल नेचर होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है, इसका वेव एक्सपेक्ट कभी देख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, क्यों नहीं देख पाऊंगा, वही रीजन डिस्कस करेंगे कि अगर वेव ये अभी दिख रहा है, ये पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल जैसा दिख रहा है भाई, ठीक है, ओके। तो वेव जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करते हुए दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है ना। तो जब हम बोलते हैं कि वेव, इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए, समझे ना। हमारे दिमाग में वेव का पिक्चर वो है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो बोला कि भाई, लेकिन उसने क्लेम तो कर दिया भाई कि मैटर भी जो है वो क्या बोलते हैं डुअल नेचर रखता है, और मतलब इवन पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव। एंड ये भी बोल दिया कि जो फॉर्मूला वेव का है वो फॉर्मूला पार्टिकल को चलेगा। तो वेव का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन लैम्डा, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला हम पार्टिकल के भी यूज कर सकते हैं, समझा। उसमें नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक, द फॉर्मूला आल्सो इज सेम, ठीक है। इनफैक्ट इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, ये पार्टिकल फोटोन का फॉर्मूला था, बोला वो तुम क्या बोलते हैं, पार्टिकल को चिपका दो, ठीक है। तो अगर पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, h अपॉन p। तो मतलब मोमेंटम पता है उसका, देयर p इज मोमेंटम। So if you know momentum of the particle, which is very easy, mass into velocity, you put it here, you will get the wavelength of the particle. समझ में आया क्या? तो he gave, this is called as de Broglie's wavelength. Okay, because if you want, if the particle is behaving like wave, then how to get the wavelength? This is the formula. समझ में आएगा? ये थियरी उसने दे दिया बॉस, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, ठीक है। We try to understand the concept also, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आई कैन राइट मोर फॉर्मूले, ओके, सो दैट अभी बाद में जज कर पाएंगे अपन की वेव नेचर नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं दिखता और दिखना कब दिखेगा, थिंग्स लाइक दैट। पहले फॉर्मूला करते हैं, लैम्डा इज h अपॉन p, ओके। p क्या है, मोमेंटम, तो इट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट मोमेंटम का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इफ यू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय m यू विल गेट p स्क्वायर अपॉन 2m, व्हिच मींस p का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ 2m की, ठीक है। तो लैम्डा का h अपॉन p लिख सकते हैं, h अपॉन m भी लिख सकते हैं, एंड h अपॉन रूट ऑफ 2m k लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला इसलिए लिखा है बिकॉज कभी कभी ऐसा बोलते हैं क्वेश्चन कि देयर आर टू पार्टिकल्स m1 m2, उनका मोमेंटम सेम है, तो उनका वेवलेंथ का रेशियो निकालो, तो क्या आएगा। देयर आर टू पार्टिकल्स m1 m2, उसका मोमेंटम सेम है
तो वेवलेंथ का रेशियो निकालो, क्या रेशियो आएगा बताओ? 1, बिकॉज H तो पहले ही कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट होगा तो सेम हो जाएगा, वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा उनका। समझ में? कभी कभी दे डोंट गिव यू, क्या बोलते हैं मोमेंटम में, कभी बोलते हैं वेलोसिटी दे देंगे, बोला वेलोसिटी का रेशियो 1:3 है और मास का रेशियो कुछ तो और है, बताओ लैम्डा क्या है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। और कभी कभी देगी इंफॉर्मेशन अबाउट काइनेटिक एनर्जी, तो डिपेंड्स व्हाट डेटा इज गिवन टू यू। इफ दे गिव यू मोमेंटम, यूज दिस फॉर्मूला, velocity mass is given, use this formula, or you can use kinetic energy depending on the information given to you. Is it making sense? ठीक है, तो this formula is actually very important, सम्स में काम आता है काफी। इसको बॉक्स कर देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, आ जाओ आगे। दिस फॉर्मूला इज जनरल फॉर एनी पार्टिकल, बट चार्ज पार्टिकल के लिए वी नो दैट, अभी फॉर्मूला हमने किया था कि इफ यू एक्सलरेट, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल में पोटेंशियल डिफरेंस वी दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है उसका, QV, जैसे हमने EV यूज किया था, राइट, वही वाला फॉर्मूला है। तो इफ यू गिव एनी चार्ज पार्टिकल Q, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, तो द एनर्जी गेन विल बी, काइनेटिक एनर्जी गेन विल बी Q into V। तो मैंने क्या किया, ये जो K लिखा था वहां पे QV डाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं वो लोग, देखो M यहाँ पे देखो, H तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। अभी M Q V ये सब वेरिएबल्स है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम है मतलब, ठीक है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में क्या किया हमने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ऐसा बोलेंगे। अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन इज गिवन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा डी बाई वेवलेंथ। तुमको पता है भाई V सेम है तो M और Q चेंज होगा, और देख मैंने M और Q लिख के रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन अगर M लेते हैं और चार्ज को E लेते हैं, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M/1836, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ओके। एंड यू शुड नो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास क्या होगा, हीलियम प्लस प्लस इज ऑल्सो अल्फा पार्टिकल, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके। एंड ड्यूटेरियम में 2m + E, तो ये चार्ज और मास पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बोला प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन वर्सेस हीलियम बताओ, अल्फा वर्सेस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो रेशियो पूछा तो ये पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो दिस टेबल इज देयर, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमन, ओके। इनफैक्ट व्हेन यू डू थोड़ा सा MTG का सम्स करोगे, और शायद बुकलेट में भी ऐसे सम्स मिलेंगे तुमको, ठीक है, जहाँ पे ना, एंड HC वर्मा तो है ही है, ओके। दिस चैप्टर इज आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, तो देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज दैट वी हैव नॉट डन, समझ में आया ना, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ यू सी सम्स जहाँ पे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ा या ऐसा कुछ करना पड़ा, तो उसके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये टफ सम्स पे शायद यूज आता है तुमको, तो अभी कर रहा हूँ। और देयर आर मोर फॉर्मूलाज ऑफ डी ब्रॉगली जो आगे मैंने लिखा है, मतलब, ठीक है, देयर आर अदर फॉर्मूलाज, वो मैं बताता हूँ कि बता दूँ, पहले वही कर लेते हैं एक्चुअली। देखो लैम्डा इज लैम्डा का फॉर्मूला वी गॉट एज h/√2m/QV। Now for electron, mass is also known and charge is also known, right? ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2m eV, where m is mass of electron। तो ये और ये H, 2, m और E सबके सब कांस्टेंट है, समझा क्या। सॉल्व करोगे खाली V वेरिएबल है, तो यू गेट दिस फॉर्मूला √150/V। तो बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 50 वोल्टेज, ठीक है, व्हाट इज द डी बाय हिज वेवलेंथ, 50 डाल दो आंसर आ जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। If you don't like √150, you can write 12.27 also, whatever is helpful। मोस्टली मुझे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, बस 50 30 ऐसा दिया है तो आंसर फटाफट आ जाता है, समझ आया क्या, ठीक है, ओके। नाउ सेम वी कैन डू फॉर प्रोटॉन आल्सो। प्रोटॉन का मास और चार्ज पता होता है, तो इफ यू सॉल्व फॉर प्रोटॉन यू गेट समथिंग लाइक दिस 0.286 Angstrom/√V। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आल्सो एंड प्रोटॉन का आल्सो। न्यूट्रॉन के लिए व्हाट यू शुड नो कि न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल, तो पोटेंशियल डिफरेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूट्रॉन का फर्क पड़ता है हीट से, ठीक है। इफ यू रेज द टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस, समझ में आ गया। एंड द फॉर्मूला इज इन जनरल KT। व्हाट इज K? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na, इफ यू रिमेंबर, ओके। तो लिख देते हैं, इट इज K इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ओके। तो वो डाल दिया तो यू विल गेट बेसिकली कि लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर लेस वेवलेंथ, समझ में आया क्या, ठीक है, ओके। और गैस पार्टिकल्स का तो अभी KTG किया है अपन ने, रिमेंबर द फॉर्मूला F/2 KT, ओके। पुट इट, यू विल गेट द फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला कि इवन फॉर गैस पार्टिकल्स d boy's wavelength will decrease as you increase the temperature. Any questions? These are some standard formulas that we should know. तो कुछ पूछना है क्या यहाँ पे, समझ में आया क्या, अच्छा आ जाओ, ठीक है। I'll come to this part.
तो कभी कभी डी ब्रॉगलीज वेरिएंट में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं तो उसके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते थे तुम लोग को। ओके, एक बार के लिए देख लो कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ है कि इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, यूनिट विल बी टेस्ला, मैं लिखा देखो बी का यूनिट इज टेस्ला, ठीक है, कैपिटल बी सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है, एंड दैट फोर्स का वैल्यू इज F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा या Q इंटू V क्रॉस B। समझा क्या? V क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब F विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ, है ना? आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या मालूम पड़ा देखो कि ये फोर्स विल बी जीरो अगर V और B पैरेलल है तो, है ना? मतलब अगर समझ ऐसा बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और तो चार्ज भी ऐसे ही मूव कर रहा है तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? जीरो हो गया, ठीक है। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो यू शुड नो दैट अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो फिर तुमको कंसीडर नहीं करना है मैग्नेटिक फोर्सेस को, है ना, ठीक है। और अगर 90 एंगल दोनों के बीच में, ठीक है, ओके, किसके? वेलोसिटी और बी के बीच में, तो क्या होगा कि साइन 90 इज 1, दिस मैक्सिमम वैल्यू, तो यू गेट मैक्सिमम फोर्स। समझ में आएगा? दैट यू शुड रिमेंबर। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 एंड जीरो व्हेन इट इज पैरेलल, वेलोसिटी इज पैरेलल। अब वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही होगा बिकॉज चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाता है वो, रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये फोर्स का एक खास बात क्या है पता है क्या? सो यू अंडरस्टैंड कि फोर्स इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फील्ड। इसका मतलब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। जिस तरफ वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आई कैन से इनडायरेक्टली कि फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ दैट इज द केस देन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और वर्क जीरो है, वर्क डन इज चेंज काइनेटिक एनर्जी WET, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? तो मैग्नेटिक फोर्सेस will not be able to change the speed of the particle, that we must know, ठीक है। so we can say therefore we can say that FB लिख रहा हूं मैं, magnetic force cannot change speed of charged particles. Very important conclusion. We will discuss this in magnetism also, but I wanted to cover it up in case you find tougher problems, ठीक है। okay, अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर केस लिया है, V परपेंडिकुलर B में क्या होगा कि 90 डिग्रीज पे क्या होने वाला है? F विल बी QEB। अब देखो वो केस को ना यहाँ पे देखो तुम लोग, ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये जो क्रॉस क्रॉस मार्क किया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब पेज के अंदर फील्ड जा रहा है, ठीक है। और फिर चार्ज पार्टिकल देखो ऐसे आ रहा है, येलो पे बना है, चार्ज का मास m है, चार्ज q है, वेलोसिटी ऐसे है, तो मतलब फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज लाइक दिस एंड चार्ज इज गोइंग ऐसे, समझा? जो है परपेंडिकुलर, तो मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, हाउ टू गेट डायरेक्शन ऑफ F? V क्रॉस B करना है, तो फिंगर टुवर्ड्स V एंड कर्ल टुवर्ड्स B, B इज इनसाइड द पेज, तो कर्ल टुवर्ड्स B, मुझे ऊपर मिला और मिलना ही था ऊपर बिकॉज जो मेरा फोर्स है उसको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो हो भी रहा है। एनी क्वेश्चंस हियर? अब समझो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ऐसा हमने कहाँ देखा है? सर्कुलर मोशन में, है ना। टेंशन अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स क्या करेगा? इसको घुमा देगा, स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कैन इट चेंज द स्पीड? नो, सी दैट FB कैन नॉट चेंज द स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू को नहीं चेंज कर सकता, वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो क्या करता है वो? डायरेक्शन चेंज करता है, समझा? और सर्कुलर मोशन में घुमाता है। ये केस तुमको आना चाहिए, समझ में आ रहा है? देयर आर मोर केसेस बट यू शुड नो दैट जब भी चार्ज अगर परपेंडिकुलर चलेगा फील्ड में तो विच मोशन इट विल परफॉर्म? सर्कुलर मोशन। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, आई विल जस्ट राइट दैट आल्सो, ठीक है। तो ये केस जो है, ये केस में चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो तुम बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हो, वी आर स्मार्ट इनफ टू राइट दिस फॉर्मूले कि वी नो दैट सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। वो फोर्स तो ये मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, तो कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कि mv²/r, इजंट इट, ठीक है। एंड FB का फॉर्मूला क्या मिला? QEB, ठीक है। डालो यहाँ पे, यू गेट वेलोसिटी का फॉर्मूला और दे कैन आस्क यू रेडियस आल्सो, समझा क्या? अब ये लोग रेडियस, रेडियस, ठीक है। रेडियस में अब देख ध्यान से देखना, रेडियस का फॉर्मूला जो आ रहा है इट इज mv/qb। व्हाट इज mv? मोमेंटम, तो उसको √2m के ही लिख सकते हैं,
ठीक है, तो रेडियस और काइनेटिक एनर्जी दे आर डिपेंडेंट। समझ में आया क्या? कितना बड़ा रेडियस लेगा वो इस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी क्या है। वेलोसिटी विल नॉट चेंज, रेडियस कैन चेंज ना। इफ यू हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा स्पीड में मैंने पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल स्पीड में घुसा ना इसके अंदर, ठीक है, फील्ड में, और बहुत ज्यादा स्पीड में घुसा है अंदर तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ज्यादा रहेगी मतलब। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, जैसे एक चार्ज है तो 10 मीटर्स पे घुसा, एक चार्ज है 20 मीटर्स पे घुसा, तो फर्क क्या है दोनों में कि 10 वाले का रेडियस कम होगा सर्कल का, 20 वाले का ज्यादा होगा, बिकॉज रेडियस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? ठीक है, और सुनो, इससे ही मैं ना के का फॉर्मुला भी निकाल सकता हूँ, विच इज समथिंग लाइक दिस, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। सॉल्व करो, आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कभी कभी कि काइनेटिक एक फॉर्मुला यहां से आया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, दूसरा वी नो दैट काइनेटिक इज आल्सो क्यू वी, उसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मुलास को। बोलते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, या बोलेंगे क्या बोलते हैं, दे कैन गिव यू अल्फा पार्टिकल वर्सेस प्रोटॉन, ठीक है, बोलेंगे दोनों सेम वोल्टेज दिया है, तो उनका रेडियस का रेशियो बताओ। समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वहां पे। आई कैन द पॉइंट। ओमेगा, ओमेगा चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? v इक्वल टू आर ओमेगा ना, तो ओमेगा भी सेम ही है, आर भी सेम है, v भी सेम है ना। v चेंज होने वाला है क्या? नहीं ना। हाँ, अगर r विल चेंज इफ यू चेंज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देन इट कैन कैसे ओमेगा विल आल्सो चेंज। हाँ, सेम कैन से, ठीक है, इज मेकिंग सेंस? समझ आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा केस है, ये इसलिए बताया बिकॉज देयर आर सम्स इन एचसी वर्मा आल्सो, ठीक है, एंड देयर आर सम्स इन योर दिस थिंग आल्सो, एचएससी में भी एक सम डाला है उन्होंने, ठीक है, जो इसके ऊपर का बात करता है, इसलिए भी डाल के रखा है यहाँ पर, मतलब ऐसे सम्स वो दिखेंगे, तो ये केस एटलीस्ट पता है तो यू कैन अप्रोच दैट प्रॉब्लम, है ना। विल डिस्कस इन डाउट्स, बट एटलीस्ट आई वांटेड टू कवर द केस कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कैसे करता है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? नहीं ना? ओके, नेक्स्ट। जैसा मैग्नेटिक फोर्स होता है वैसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ठीक है। इफ यू हैव अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, तो उसमें फोर्स लगता है। नाउ दिस फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्सेस। देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है कि इट कैन एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस। अगर v 0 है तो f 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा नहीं है, ओके। अगर चार्ज रेस्ट पे भी है तो उसको फोर्स लगेगा। फॉर्मूला क्या है? इट इज F इज Q इंटू ई, ओके। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज है और F मिल गया। और अगर E कांस्टेंट है तो कैसे F इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट, है ना। तो A का फॉर्मूला हो जाता है A इज F अपॉन M, तो विल गेट QE बाय M, ओके। बट यू शुड नो दैट कि E इज कैपेबल ऑफ exerting force on charge at rest also, ठीक है, that is the point I made, which means that कि Q can accelerate it, मतलब वो स्पीड को चेंज कर सकता है, समझा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा डी ब्रॉइस वेवलेंथ वाज h अपॉन p या h अपॉन mv पहले, ओके। नाउ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दे चार्ज को, तो क्या होएगा? तो यू नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, और a का वैल्यू वो डालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो कैसे वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसको से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे होगा। तो वेलोसिटी चेंज कब होगा? जब तुमको f का वैल्यू पता है और a पता है, तब तो निकाल पाओगे तुम, ठीक है। इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला भी करवा दिया। समझ में आया क्या? इसमें एक पॉइंट और बताया मैंने कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऑपोजिट में लगता है। तो पॉजिटिव विल गो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव विल गो ऑपोजिट। एनी क्वेश्चंस? तो टू फॉर्मूला एडिशनल आई टोल्ड यू, वन F इज इक्वल टू QE, अदर इज F इज इक्वल टू QEB। समझ में आया क्या? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल कवर दिस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बट इन केस यू फाइंड एनी सम्स यू शुड बी एबल टू अप्रोच, दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। मतलब अभी यहाँ तक ये समझा है कि डी ब्रॉगली ने आके क्लेम कर दिया कि कोई भी पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव करेगा, ओके ना, कि बिकॉज नेचर को सिमेट्री पसंद है। और ही गेव ऑल द फॉर्मूलाज आल्सो, सब फॉर्मूला में जैसे कि भाई अगर तुमको इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, और तुमको प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला चाहिए तो ये कर लो, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो ही गेव ऑल द फॉर्मूले। बट हमको क्या पता करेक्ट है कि नहीं, है ना। थियरी दिया है ना, करेक्ट भी तो होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सम एक्सपेरिमेंट व्हिच वैलिडेट्स दिस। समझ में आया ना? ओके, बट वो कब करेंगे अपन? एक मिनट पास करो। कहाँ पे थे अपन?
See, I can directly jump to क्या बोलते हैं the DNG experiment, okay? But I want to cover one more small topic. This will increase your क्या बोलते हैं ना understanding on the subject. See, understand अभी तक क्या हुआ है कि डी ब्रॉगली ने क्लेम किया है कि पार्टिकल भी वैसा बिहेव करते हैं, ओके? समझ रहा है? और उसने फॉर्मूला दे दिया सब कुछ, 3-4 फॉर्मूला लिख के दे दिया हमको, ठीक है? मतलब शायद वो राइट भी हो सकता है, बट वी नीड प्रूफ ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज तुम बोल रहे हो कि पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है, हमने वो देखा है क्या? कैन वी ऐसा हो रहा है कि पेन को फेंको तो क्या बोलते हैं मोमेंटम में तो वेव जैसा बिहेव करने लगेगा? ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? नहीं होता ना, मतलब ठीक है? तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लुक एट दिस, सो समझो अगर इफ आई हैव टू सोर्सेस, ठीक है, सोर्स ऑफ बुलेट्स फॉर एग्जांपल, ओके, तो मुझे पता है व्हाट इज पार्टिकल बिहेवियर कि बुलेट्स फायर होंगे तो आई हैव टू स्पॉट्स जहां पे बुलेट के मार्क्स दिखने चाहिए, इजंट इट? विल मतलब हमारे लिए पार्टिकल नेचर मतलब क्या है कि सेम जगह पे जा रहा है बस। वेव नेचर क्या है हमारे लिए? वेव्स आर दिस बिहेवियर, ठीक है, जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। रिमेंबर इफ यू हैव टू सोर्स ऑफ वेव्स व्हाट विल हैपन? विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? एंड देन यू हैव इसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एक पैटर्न बनता है, इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में जो बंदा इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन करता है, डिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा अभी, ठीक है, जो बंदा इंटरफेरेंस हमको पता है, ठीक है, जो लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करते हैं वो हमारे लिए वेव है, ठीक है, और जो लोग नहीं करते जैसे ये लोग बुलेट लोग, ये हमारे लिए पार्टिकल है। समझ में आया गया? आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव और पार्टिकल इज कि वेव्स परफॉर्म इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पार्टिकल्स डोंट। डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, अच्छा, अब हमको इन्होंने क्या बोला कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि ये बुलेट्स वगैरह क्यों वेव ऐसा नहीं करते, मतलब बिहेव? तो उसने एक एग्जांपल दिया है, उसने क्या बोला, देखो, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को अगर तुम देखना है, ठीक है, व्हाई नॉर्मल ऑब्जेक्ट डू नॉट शो वेव नेचर? रीजन बीइंग, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, एक मैंने 140 ग्राम लिया है, मतलब इट्स अ नॉर्मल वेट, समझ लो एक बॉल का वेट है, ठीक है, इस ट्रायलिंग में 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बॉल को जोर से फेंका समझ लो एक तरीके से, ठीक है, उसका अगर मैं वेवलेंथ निकालू h/p करके तो मुझे देखो क्या मिलता है, 1.7 × 10⁻34। यू शुड अंडरस्टैंड ये वेवलेंथ ना बहुत कम वैल्यू है। एक एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम्स में होता है, यू नो 0.532 एंगस्ट्रॉम किया है तुमने फॉर्मूला, राइट? ठीक है, अगर एक उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट स्टफ इज न्यूक्लियस, राइट? ठीक है, न्यूक्लियस की साइज भी 10⁻15 होती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इट इज फर्मी में होता है, मतलब फेम्टो में होता है, समझा? तो मतलब न्यूक्लियस का भी मतलब कितना गुना छोटा, -35, मतलब समझो मतलब कितना, उससे ही बहुत छोटा वेवलेंथ है इसका, कि जितना बड़ा तुम्हारा वेवलेंथ होता है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है टू डिफ्रैक्ट और इंटरफियर, समझा? अगर हमको लाइट को भी, इफ यू रिमेंबर कि 2 स्लिट से हमने ट्रांसफर ये किया था, मतलब ऐसे 2 स्लिट बनाया था हमने, S1 S2, और फिर इंटरफेयर कराया था, तब जाके भी इसका इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जो स्लिट का जो विड्थ होता है, ठीक है, इट हैज टू बी एज स्मॉल एज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। समझ में आया क्या? ठीक है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट कहां से लेके आएंगे? ठीक है, अब न्यूक्लियस ही छोटा नहीं है, न्यूक्लियस भी 10⁻15 है। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को इंटरफियर कराना या डिफ्रैक्ट कराने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे जो इतने बड़े होंगे। इतना छोटा ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, समझा? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिफ्रैक्ट अ बॉल, नॉर्मल बॉल जिसको हम फेंकते हैं, तो उसका कभी वेरिएशन दिखेगा ही नहीं हमको। समझ में आया क्या? ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने फॉर्मूला को था दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया, जैसे हमने क्या बोलते हैं साउंड पे लगाया, ठीक है। साउंड पे हमने देखा, देखो साउंड का वेवलेंथ अगर चाहिए हमको, ठीक है, तो एफ वी पता है, एफ ले लिया हमने 500 हर्ट्ज का, एक नॉर्मल ट्यूनिंग फॉर 500 हर्ट्ज का होता ही है, ठीक है, ओके, और स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 300, ठीक है, डिवाइड करो तुमको मिलेगा 0.6 मीटर। मतलब साउंड का वेवलेंथ कितना होता है? 0.6 मीटर, ठीक है। अब इतना 0.6 मीटर मतलब समझते क्या, मतलब ये 0.6 मतलब कितना हो गया, 6 है ना, 60 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं ये जैसे ये एड्ज ले लूँ अगर बोर्ड का, ठीक है, तो आराम से इतना बड़ा तो होगा, 0.6 मीटर तो होगा ही, तो ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा ही छोटा होगा। तो मतलब रियल लाइफ में इट इज पॉसिबल कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है, ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि हम साउंड को आराम से डिफ्रैक्ट कर पाए। समझ में आ रहा है क्या? और साउंड का डिफ्रैक्शन का एग्जांपल बहुत अच्छा है, देखो एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है। कभी हैव यू फेल्ट कि ऐसा होता है कि थंडर जोर से हुआ, ठीक है, और हमको पता ही नहीं चला थंडर आ कहाँ से रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा ना मतलब कि बज रहा है बस, मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से आवाज आ रहा है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस। इमेजिन करो कि एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग खुसर खुसर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपने क्या लगेगा कि भाई वेव है ना, तो आपने सोचा कि वेव ऐसे डाल, जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड है तो वेव विल ट्रैवल लाइक दिस, है ना, मैंने ऐसे सिखाया था, जैसे रिपल्स, पानी में पत्थर फेंक दो, ठीक है, तो रिपल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, वैसे वेव्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्शन वाइज देखो तो ऐसे ऐसे ट्रैवल, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, मतलब समझ में आया ना, दिस हाउ इन ऑल डायरेक्शंस, दिस हाउ वेव्स विल ट्रैवल। तो अगर ये लोग जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका वेव भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, तो मतलब ये वेव ऐसे जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट। तो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है अगर, तो शायद उसको सुनाई दे, ठीक है, बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, कोई बंदा यहाँ पे भी खड़ा है तो भी उसको सुनाई देता है। क्यों? बिकॉज एडजेस पे, ये एज जो है, वॉल का जो एज है, इट इज एक्चुअली लेसर देन 0.6। ये थिकनेस, अगर तुम एज का थिकनेस देखोगे अगर, तो ऑब्वियसली ये तो एमएम्स में रहेगा, मतलब ठीक है, तो वो तो काफी है, मतलब ठीक है, साउंड को रिफ्लेक्ट करना मतलब बेंड करना, ठीक है, तो साउंड को बेंड कर देता है, समझा? तो बेंड करने से क्या होता है कि इसको भी सुनाई देगा, और ये लोग जो बात कर रहे हैं, इज मेकिंग सेंस? ऐसे अपने थंडरिंग में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं अपने, ठीक है, उनके एडजस्ट है, देयर आर ऑब्वियसली 0.6 एंड लेस देन दैट, ठीक है, तो थंडर को डिफेंड करते हैं, यहाँ से साउंड बेंड होता है, यहाँ साउंड बनता है, सब बेंड हो के आता है हमारा साउंड अपने पास, कि यहाँ पे बेंड हो के यहाँ पे ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ऐसा था कि इधर से भी साउंड आ रहा है, इधर से भी साउंड आ रहा है, हर तरफ से साउंड आ रहा है, आपको ऐसा लगता है, समझ में आ रहेगा? इसलिए वी डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सोर्स कहाँ है साउंड का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इसको क्या लग रहा है, ये बंदे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई बात, इसके हिसाब से देखो तुम अगर बैक टेस्ट करे तो इसको लगा कि आदमी लोग यहाँ से यहाँ बात कर रहे हैं, इन रियलिटी लोग यहाँ बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको पता नहीं एग्जैक्टली सोर्स का है, बिकॉज लाइट साउंड वेव्स आर बेंडिंग एंड दिस बेंडिंग इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, समझा? बेंडिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स अराउंड द एडजेस। एक और एग्जांपल था, देखो, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया, एक एग्जांपल और दो, सी इफ यू कैन रिलेट। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास एक स्क्रीन है यहाँ पर और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और समझ लो मैंने लाइट चालू की तो लाइट ऐसे आ रहा है, देखो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द लाइट रीजन, दिस विल बी शैडो रीजन, ऐसे होना चाहिए बॉस, ठीक है। हमने देखा है रियलिटी में अगर ये एडजस्ट शार्प है तो ऐसा हो जाता है, ये बेंड हो जाता है यहाँ पे। तो क्या देखा हमने कि भाई लाइट रीजन ज्यादा है और शैडो रीजन कम है, समझ में आ रहा है क्या? इफ आई हैव अ स्लिट लाइक दिस, यहाँ पे देखो, जैसे एक होल किया मैंने, स्लिट बना है और यहाँ से पास किया अपन ने साउंड वेव को या लाइट वेव को, तो क्या देखा, ठीक है, कि ये लाइट ऐसे स्प्रेड होते हुए दिखता है, समझा ना? और ऐसा पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इट इज वेरी सिमिलर टू योर इंटरफेरेंस पैटर्न, पर थोड़ा अलग है। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ब्राइट का वैल्यू फिक्स है, 4i 4i 4i, और मिनिमा इज ऑलवेज 0 0 0, ठीक है, ओके। पर डिफ्रैक्शन में ऐसा बन रहा है, बीच वाला काफी थिक है और बाद में फिर रिड्यूसेस शार्पली, समझा ना? तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स में। पर तुम समझो कि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कौन दिखाता है? वेव्स। जैसे साउंड वेव दिखा सकता है क्योंकि क्या बोलते हैं, उसका जो वेवलेंथ है वो 0.6 है, और नॉर्मल लाइफ में हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो 0.6 के थिकनेस के होते हैं, समझ में आया? तो इसलिए साउंड वेव पे बहुत कॉमन है, मतलब डिफ्रैक्शन होना या इंटरफेरेंस होना, इट इज वेरी कॉमन, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। बट नॉर्मल अगर बॉल को ले लिया, पार्टिकल को ले लिया, तो उनके लिए डिफ्रैक्शन कराना इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। इतना छोटा पार्टिकल हमारे पास नहीं है अवेलेबल, समझा? इसलिए हमने क्या बोला कि भाई पार्टिकल का वेव नेचर देखना तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो अब मैं वेरीफाई कैसे करूं कि डी ब्रॉगली सही है? समझ में आया ना? अब डी ब्रॉगली बोल तो दिया भाई पार्टिकल वेरीफाई कैसे करूं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए इतना ऑब्जेक्ट चाहिए, है ही नहीं मेरे पास, समझा प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो, ठीक है, फिर हमने क्या किया, वही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पे लगाया, मतलब 50 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट दे दूं तो मुझे वैल्यू मिलके आया 7.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉसिबल है नॉर्मल लाइफ में बनाना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो तुम्हारा होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक निकल क्रिस्टल, तो उनके बीच का जो एटॉमिक स्पेसिंग होता है, एक एटम और दूसरा एटम के जो स्पेस होता है, ठीक है, वो स्पेस एंगस्ट्रॉम में होता है, समझा ना? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। कोई कोई इसको लैटिस कांस्टेंट भी बोलता है, समझा? तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल से पास करे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो वेव जैसा बिहेव करता है तो वो डिफ्रैक्शन करना चाहिए, बिकॉज इतना छोटा ऑब्जेक्ट मेरे पास है, समझा? नॉर्मल बॉल के साथ तो नहीं कर सकता मैं, बट इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकता हूं मैं, समझ में आएगा? तो इट इज पॉसिबल टू हैव एन एक्सपेरिमेंट वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड। अगर डी ब्रॉगली सही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल शो ऐसा कुछ पैटर्न, ऐसा, समझ में आएगा? अगर डी ब्रॉगली सही है तो वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा कुछ दिखाना चाहिए। आई गेट द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने देखा, फिर एक एक्सपेरिमेंट है, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग डेविसन एंड डीएनजी एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो दे टुक अप द टास्क, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली सही है कि नहीं, क्या सच में पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करते हैं कि नहीं। कैलकुलेशन से ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड इफ आई पास देम थ्रू क्रिस्टल्स, समझ में आया क्या? ठीक है, तो कर देते, देखो यहाँ पर
एक क्रिस्टल लिया यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी, ये फिलामेंट है, इसको हीट किया अपन ने, हीट करने के लिए देयर इज अ बैटरी हियर, स्मॉलर बैटरी, ओके, बिकॉज ऑफ दिस हीट व्हाट विल हैपन इज थर्मियोनिक एमिशन होगा। तो व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन? हीट गर्म करने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, तो गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला तो थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। समझा क्या? जैसे बल्ब में होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली निकलते हैं ऐसे, ओके, बट मुझे एक बीम चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगाया कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का बीम, इसको फोकस करने में हेल्प करता है। समझ में आया क्या? प्लस हमने क्या किया कॉलीमेटर में, एक और वोल्टेज लगा दिया V। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड, तो दे विल गेट गुड एनर्जी आल्सो। समझ में आया व्हाट इज कॉलीमेटर? इसको फायर किया आपने क्रिस्टल के ऊपर, और फिर क्या किया, ऑब्वियसली क्या होगा कि जैसे आपने बुलेट फायर किया है और यहाँ पे कुछ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके यहाँ पे आके गिर जाएगा, हिट करेगा, वापिस आ जाएगा, राइट। अगर पार्टिकल रहेगा तो एक ही जगह पे मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। समझ में आया ना? इफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, तो यहाँ से फायर किया और एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा वही मिलना चाहिए। डू यू एग्री? ओके, नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को फायर किया, रिसीवर के लिए यहाँ पे एक देर सा गैल्वेनोमीटर या कलेक्टर बोल सकते हो, वो लेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को और फिर इसको पास करेगा बैटरी ऑपरेटेड सर्किट पे। उसमें अगर करंट दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गिरा है वहां पे, समझा। और इसको रोटेट करते रहते हैं देखने के लिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हमने वो एंगल निकाल के देखा, तो भाई चलो मिला, इलेक्ट्रॉन मिला एक जगह पे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो आई गॉट लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर रीजन। उसका मूव किया, फिर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहेगा? तो आई गॉट अ पैटर्न विच इज सिमिलर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। तुमको समझा क्या हुआ? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो एक ही जगह पे मिलता था, बट ऐसा नहीं हुआ, इट एक्चुअली फॉर्म्ड अ पैटर्न लाइक दिस। इज मेकिंग सेंस? मतलब इलेक्ट्रॉन्स डू गेट डिफ्रैक्टेड, डी ब्रॉगली वाज राइट। समझ में आया क्या एक्सपेरिमेंट? ठीक है, और इन्होंने क्या किया फिर और प्रूव करने के लिए, देयर इज अ फॉर्मूला इन वेव ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला में लिखा लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। व्हाट इज डी? डी क्या है? मतलब वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, ठीक है, निकल क्रिस्टल का वो। और ये एंगल तुमको अगर पता है तो तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो यूजिंग ब्रैग का फॉर्मूला। ब्रैग इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी वाला बंदा हो, ठीक है, वो थ्योरी राइट है। तो हमने ब्रैग के फॉर्मूला से वेवलेंथ निकाला। समझ में आया क्या? फिर हमने क्या किया, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला भी है कि वोल्टेज पता है मेरे को, तो मैं डी ब्रॉगली से भी निकाल सकता हूँ। दोनों के वैल्यूज निकाले, मैच किया तो मैच हो गया। समझ में आया क्या? तो मतलब ब्रैग जो वेव थ्योरी का आंसर है और डी ब्रॉगली जो पार्टिकल थ्योरी का जो आंसर है, मैच होता है। समझ में आया? तो विच प्रूव्स दैट कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया क्या? ठीक है, ये खत्म होता है अपना चैप्टर। एनी क्वेश्चंस एनीवन? इसको सेव करके भेज दो सबको।